another problem, that is suppose you have a K meson, K0 meson, it is decaying to pi plus plus pi minus. Okay, so is this decay is allowed? If yes, then what type of decay it is? Okay, so let us check. So first I will check. अच्छा, कोई भी डीके या इंटरेक्शन अलाउड होने के लिए क्या क्या जरूरी है कंजर्व होना? फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, ओके, देन लेप्टॉन क्वांटम नंबर, बैरियन क्वांटम नंबर, स्पिन, ठीक है, ये आपका कंपल्सरी है कोई डीके अलाउड होने के लिए या कोई इंटरेक्शन अलाउड होने के लिए. देन फर्दर जो है आपका जैसे स्ट्रेंजनेस है I3, दैट विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन और डीके इट इज. ओके, बट नेसेसरी एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, लेप्टॉन क्वांटम नंबर, ठीक है, देन यू हैव बैरियन नंबर, स्पिन एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे आपका नेसेसरी है. सो लेट अस चेक वन बाय वन. सो फर्स्ट आई विल चेक चार्ज. K0 is neutral, charge will be 0. For pi plus it will be plus 1. For pi minus it is minus 1. So obviously charge is conserved. इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड पे वो प्लस 1 माइनस 1 it will be 0. So charge is conserved. Then I'll check lepton quantum number. So none of them are lepton particle. Obviously L will be 0 for K0, it will be 0 for pi plus, it will be 0 for pi minus. So it means lepton is conserved. Again, none of them are baryon particle, right? K0 is meson, obviously B will be 0. Okay, for pi plus again B number will be 0. For pi minus again it will be 0. It means baryon is conserved. Then I'll check what spin. Okay, spin for K0 is how much? Spin K0 is 0 scalar meson, obviously spin will be 0. For pi plus again it will be 0. For pi minus it will be 0. So spin is conserved, spin and angular momentum. Okay, so these are the necessary thing that we have to check. So it means this decay is allowed, but आपको अभी चेक करना है कौन सा decay है ये. So let us check isospin. ठीक है, isospin of K0 is how much? It is basically half, right? Isospin of K0 is basically how much? Half. ठीक है, for pi plus it will be plus 1. Okay, for pi minus again it will be plus 1. अब मैंने बोला था कि आपको वेक्टर सम लेना है, तो राइट हैंड साइड में प्लस 1 प्लस सॉरी ऑन ऑन है, तो इनका वेक्टर सम क्या हो सकते हैं? आइदर 2 और 0. So none of these are matching with left hand side. It means I is not conjugate. So it means this decay will not be allowed by strong interaction, right? Now you have to check. So सर स्ट्रेंजनेस भी देखना होगा ना हमें, स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है ना. now we'll check S. So you see exactly we have to check S also. Yes. So you see I is not conjugate, इसका मतलब ये strong नहीं हो सकता है. अब possibility क्या है? Either it will be strong EM or it will be weak. क्योंकि I conjugate नहीं है, it means it cannot be possible by strong. So either it can be possible by EM or weak. Now we have to check whether it is EM or weak. तो बाकी conservation आपको देखना पड़ेगा उसके लिए. So let us check S. So for K0 S is how much? Plus 1. And for pi plus it is 0. For pi minus again it will be 0. Okay, it means S is not conserved, but delta S is how much here? Minus 1. Okay, delta S is minus 1. Delta S means strangeness of product, that is 0, minus strangeness of reactant. So 0 minus 1, it means delta S is minus 1. And you know for weak decay delta S plus minus 1, that is allowed. Okay, so what I can say from here, S is not conserved, so it cannot be possible by EM interaction. But since delta S is minus 1, so this decay will be allowed by what type of? Exactly. So this will be allowed by weak. Okay. And also you can see, if you see that concept of strangeness, so strangeness का concept क्या है? कोई strange particle है, so they basically will decay by what? They will basically decay by weak interaction. That is the concept of strangeness, right? What we have defined. Strangeness कैसे define किया था? कि जो particle आपका strong interaction के through produce होता है, but they will decay by weak interaction. So this particle, you know, this is strange particle. So its decay obviously will be what?
it will be weak decay. Okay, is it clear what I am saying? Is it clear? Okay, clear. Next, that we are going to discuss another decay or interaction. Sorry, another interaction, that is pi minus is interacting with proton and it is giving you pi 0 plus neutron. If this interaction is this interaction allowed? Is this interaction allowed? If yes, then what type of interaction it is? So obviously, you see, proton is there on the left hand side and it is interacting with meson. So it is only possible by what? It is only possible by strong interaction if the associated conservation laws are satisfied. So let us check one by one. So I'll check charge first. Okay. So for pi minus, it will be -1. For proton, it will be +1. For pi 0, it will be 0. For neutron, it will be 0. So charge is conserved. Then I'll see spin. I'll see that spin. For pi 0, it will be 0. For proton, it will be how much? It will be half. For pi 0, again, it will be 0. And for neutron, it is half, right? So on the right hand side, you are getting half. On the left hand side, you are getting half. It means spin and associated angular momentum is conserved. Now I'll check lepton number. So none of them are lepton particles. So obviously L will be 0 for all. Okay. So it means L is conserved. Now we'll see baryon number. So for pi minus, it will be 0 because this is meson. Proton is baryon, B will be 1. Pi 0, B will be 0. And for neutron, B will be 1. So right hand side you have on, left hand side you have on. B is conserved. Okay. Then you have what? You have I. So pi minus chi कितना होता है? 1. 1. So on, then for proton it will be half, right? For pi 0, how much will be the I? It will be 1. Yes, good, very good. And for neutron it will be half. It means it will give two components, that will be 3 by 2 or two parts. You will get two I values, that will be 3 by 2 and 1 by 2. And right hand side also you will get 3 by 2, 1 by 2. It means I is conserved. Then you have I3. For pi minus it will be -1. For proton it will be half. For pi 0 it will be 0. For neutron it is -half. So right hand side में कितना मिल रहा है आपको? -half मिल रहा है. Left hand side में -1 plus half, that is -half. It means I3 is conserved. Then you have to check S. क्या नीचे दिख रहा है आप लोगों को? नीचे दिख रहा है? Okay. Yes. So for pi minus S is 0. Again for proton S will be 0, right? And also for pi 0 it will be 0. For neutron it is 0. It means you see all quantum number or all conservation laws are satisfied. So this interaction is allowed by strong. Is it clear what I am saying? Is it clear? Yes, sir. Okay. ये वाला पार्ट इरेज कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड वाला? क्या लिख लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. Next decay you have, that is sigma 0. Sigma 0 decays to a lambda 0 plus gamma. Sigma 0 decays to lambda 0 plus gamma. ठीक है? Is this decay allowed? Is this decay allowed? If yes, then what type of decay it is? Now you see, gamma is involved, right? Gamma is involved, so obviously this interaction is allowed only by EM. So let us check one by one. Let us check charge. So for sigma 0 charge is 0, lambda 0 charge is 0, for photon charge is 0. So charge is conserved. Now we'll see, this will be charge. Now we'll see spin. For sigma 0 charge is, spin is how much? For sigma 0, sigma is baryon, obviously. Half. Half. Okay. For lambda 0,
it will be half, right? Because these are baryons. For baryons, it will be half. Not all baryon. नॉर्मल जो बैरियन है उसके लिए हाफ होता है, हेवी बैरियन के लिए, एंड आपका जो ओमेगा माइनस उसके लिए 3/2 होता है, राइट? ठीक है, ये आपका हाफ हो गया। फोटोन का कितना है आपका? हाफ है, राइट? सॉरी, ऑन है, फोटोन का 1 हुआ है। ये कॉम्बिनेशन क्या देगा आपको? आइदर 3/2 और on by 2. Now this on by 2 is matching with left hand side. It means spin is conserved. Okay, then you have to check lepton quantum number. So none of them are lepton particle. Obviously, L will be 0 for all. Right? So it means L is conserved. Then you have to check baryon number. So obviously, sigma 0 is baryon, B will be on. Same is true for lambda 0, B again will be on. But for photon, it will be 0. It means we see on the left hand side B is on, right hand side B is on, so baryon is conserved. Then you have to see I. For sigma 0, I is how much? 1. 1. Good, very good. For lambda 0, it will be 0. And for photon, it will be 0. You see, I is not conserved. I is not conserved, right? Then you have to see I3. ठीक है, I3 कितना होता है sigma 0 का? 0, right? For lambda 0, again it will be 0. Photon, it will be 0. Sigma 0, I will be 0, na? No. Sigma plus, sigma 0, sigma minus, they are grouped. Okay? Yes, sir. I Yes. equals to 1. Yes. For sigma 0, I equals to 1. You please check yesterday's जो आपका मैं कल जो लिखवाया आपको चेक करो उसको, ठीक है? So I3 will be conserved here. Now what left? क्या left बचा है अब? कौन सा बचा है? Strangeness. हाँ, एस चेक करो जरा। इसके लिए कितना होता है? -1 होता है। लैम्डा 0 के लिए -1 होता है, फोटोन के लिए 0 होता है। So S is conserved. So you see all quantum numbers are conserved. Only what? I is not conserved, right? So कौन सा decay है ये? EM interaction. Exactly. तो अगर ये पॉसिबल है तो फिर किसमें है आपका? EM में ही है ना? क्योंकि गामा इन्वॉल्व है। So this is allowed by what? Allowed by EM interaction. ठीक है? Are you getting what I'm saying? Similarly, you can check this decay. This is your homework. This is your homework. So you have to prove that gamma, if gamma is interacting with proton, it will give you pi0 plus p. And this interaction is EM. You have to prove. Okay? So this is your homework. Please do this homework. Okay? क्या लिख लिया आप लोगों ने इतना? Okay. Next you have, suppose pi minus plus p is interacting and giving that product, that is K0 plus sigma 0. Is this interaction allowed? If yes, then what type of interaction it is? Is this interaction allowed? So let us check one by one. Let us check charge first. ठीक है, पाई माइनस का -1, प्रोटॉन का +1, K0 का 0 है. Then for sigma 0 0, charge is conserved. Then what you have to see? You have to see spin. ठीक है, पाई माइनस का स्पिन कितना होता है? 0 होता है. प्रोटॉन का कितना होता है आपका? हाफ होता है, राइट? K0 के लिए अगेन 0, and for sigma 0 it will be how much? It will be half. It means spin is conserved. Then you have to see lepton quantum number. None of them are lepton particle. Obviously L will be 0 for all. Okay, it means L is conserved. Then you have to see baryon quantum number. So for pi minus, B will be 0, right? For proton it will be on because it is baryon. For K0 it will be how much? For K0 it will be how much? It will be 0. 1. For K0 baryon number is 0, right? And for sigma 0 baryon number is on. So right hand side में आपको on मिल रहा है, left hand side में भी on है, baryon number conserved है. Then you have to see I. ठीक है, प्रोटॉन के लिए I कितना है?
सॉरी पाई माइनस के लिए आई कितना है, ऑन है। प्रोटॉन के लिए कितना है, हाफ है। ठीक है, K0 के लिए कितना है आई, it will be half, right? And for sigma 0 it will be on. So you see I is conserved here, right? I conserved hai. Then you have to see I3. I3 for pi minus it will be minus 1. For proton it will be half. For K0 it will be minus half, right? For K0 it will be minus half. And for sigma 0 it will be how much? It will be 0. ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कितना मिल रहा है, माइनस हाफ प्लस 0, इट इज माइनस हाफ। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 प्लस हाफ, सो इट विल बी माइनस हाफ। सो माइनस हाफ, राइट हैंड साइड में माइनस हाफ, इट मींस I3 इज कंजर्व्ड। अब बचा क्या है, Strangeness. हाँ, कैन यू प्लीज चेक इट, K is conserved है। For pi minus it is 0, for proton it will be 0, for K0 it will be plus 1, and for sigma 0 it will be minus 1. It means S is conserved. Right hand side में plus 1 minus 1 0, 0 plus 0 0. So all quantum numbers are conserved, it means Strong. it will be strong. And also you can see this is only possible by strong, because why, because proton is interacting with meson, right? So अगर होगा तो फिर strong में ही होगा, so it is allowed by strong. ठीक है, इज इट क्लियर, क्या क्लियर है आप लोगों का? Yes, sir. Please do this homework, okay? If people are not doing properly, 4-5 लोग ही भेजते हो। Okay, now suppose pi plus is interacting with proton, okay, and it's giving you K plus X, ठीक है। आपको बोला गया है कि ये जो इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो एक्स पार्टिकल जो है आपका कौन सा होगा, एक्स पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है ये, इसका नेम क्या है? So this interaction is allowed by strong interaction, so you have to identify that X particle here. कैसे करोगे बताओ? सर क्वांटम नंबर चेक कर लेंगे। हाँ चेक करो एक एक करके। हाँ, so let us identify that X particle. So चार्ज देखते हैं पहले। तो स्ट्रॉन्ग ये क्या गिवन है आपको, ये इंटरेक्शन क्या गिवन है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग में सारे आपका क्वांटम नंबर कंजर्व होना पड़ेगा, ओके। सो चार्ज प्रोटॉन का कितना है, प्लस 1 है, सॉरी पाई प्लस का प्लस 1 है, प्रोटॉन का प्लस 1 है, के प्लस का कितना है, प्लस 1 है। तो चार्ज कंजर्व होने के लिए एक्स का कितना होना पड़ेगा, चार्ज प्लस 1, इट मींस एक्स इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करते हैं, चलो स्पिन चेक करते हैं, लेट अस चेक स्पिन। पाई प्लस का स्पिन कितना है, 0, प्रोटॉन का कितना है, हाफ है, के प्लस का 0। स्पिन कंजर्व होने के लिए इसका कितना होना पड़ेगा, एक्स का हाफ होना पड़ेगा। इसका मतलब ना तो ये आपका मेजॉन नहीं हो सकते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स और बैरियंस में से होगा। आप इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करते हैं, पाई प्लस का 0 है, प्रोटॉन का कितना है, 0 है, के प्लस का 0 है, तो फिर इसका कितना होना पड़ेगा, एक्स का, इलेक्ट्रॉन को कंजर्व करने के लिए 0 होना पड़ेगा। अब ये तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता है, तो पहले क्या कंक्लूजन आ रहा था, स्पिन हाफ है तो इलेक्ट्रॉन्स और बैरियन में से हो सकता है। अब एल क्वांटम नंबर 0, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या है, बैरियन में से होगा, ओके। लेट अस चेक बैरियन नंबर। पाई प्लस का कितना है, 0 है, प्रोटॉन का कितना है, 1 है, के प्लस का कितना है, 0 है। बैरियन कंजर्वेशन करने के बैरियन नंबर कंजर्व करने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। इट मींस एक्स शुड बी फ्रॉम बैरियन फैमिली, ओके। नाउ लेट अस चेक अदर प्रॉपर्टीज, ओके। चलो जरा आई चेक करो इसका, पाई प्लस का कितना होता है, 1 होता है, प्रोटॉन का हाफ होता है, के प्लस का कितना होता है, हाफ होता है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 1, ओके। देन यू हैव I3, पाई प्लस का कितना है, 1 है, प्रोटॉन का I3 कितना है, हाफ है, राइट, के प्लस का हाफ है,
इसका कितना होना पड़ेगा I3 को भाई? 1 पाई प्लस का 1 है, प्रोटॉन का हाफ है, 3/2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, के प्लस का हाफ है, एक्स का कितना होना पड़ेगा? एग्जैक्टली 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई करो। बैरियन में से जिसका आइसोस्पिन ऑन है, I3 ऑन है। देन नेक्स्ट यू हैव टू चेक स्ट्रेंजनेस। प्रोटॉन का पाई प्लस का कितना है? 0 है। प्रोटॉन का कितना है? 0 है। के प्लस का कितना है? +1 है। यस राइट। इसको कितना होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा। अब बैरियन में से I ऑन I3 कितना है? ऑन S -1 किसका होता है? सिग्मा प्लस सिग्मा सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस का होता है राइट। सो X विल बी व्हाट? X विल बी योर सिग्मा प्लस। क्या समझ में आई आप लोगों को? डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? यस सर ओके, जरा इसको चेक करो। pi minus plus P interacting and giving product K0 plus X. Again, it is given that this interaction is strong interaction. So you have to identify this X particle. Okay. Can you able to do? जरा बताओ कौन सा पार्टिकल होगा? Okay. So let us check one by one. Let us check charge. pi minus का कितना है? -1, प्रोटॉन का +1, K0 का 0, तो X का क्या होगा? 0, right? So X should be neutral. Let us check baryon number. pi माइनस का कितना है? 0, प्रोटॉन का कितना है? ऑन है, K0 का 0 है, तो baryon भी कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा राइट। तो X का कितना होना पड़ेगा? 1 So it should be from baryon family having 0 charge. Now let us check I चेक करो जरा। pi माइनस का कितना होता है? I ऑन। प्रोटॉन का कितना होता है? हाफ, राइट। K0 का कितना होता है? K0 का कितना होता है भाई? हाफ। इसको कितना होना पड़ेगा? 1 अच्छा, अगर मैं 0 लूं तो यहाँ देखो रिएक्टर में कितना मिलेगा आपको? 3/2 1/2। ठीक है, अगर मैं 0 लूं तो भी कंजर्व होगा, अगर मैं ऑन लूं तो भी कंजर्व होगा। देखो 0 प्लस हाफ कितना होता है? हाफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। अगर मैं ऑन लूं तो ऑन प्लस हाफ दैट विल गिव यू 3/2, यू हैव 3/2 हियर। तो एक्स पार्टिकल कैन हैव आइसोस्पिन क्या क्या हो सकता है? अगर 0 लोगे तब भी कंजर्व्ड है, ऑन लोगे तब भी कंजर्व्ड है। क्या समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. In the previous case also. यस यू कैन टेक आप लो इसको क्या लिख सकते हो आप? यू कैन टेक 0 और ऑन। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है। अब बताओ यहाँ पे सपोज मान लो आपके पास आई क्या क्या पॉसिबल है? 0 ऑन, राइट। मतलब ये वाला केस के लिए बोल रहे हो, ये भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, ऑन भी पॉसिबल है, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? यही तो क्वेश्चन है ना आपका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसमें आपका प्रॉपर्टी क्या आया ये वाला क्वेश्चन में? देखो सर, तो फिर I3 से डिसाइड करेंगे ना? हाँ यस यस I3 से डिसाइड करेंगे। हाँ एग्जैक्टली अगर देखो अगर आपके पास 0 है, सपोज मान लो आपके पास 0 है, अगर I0 है I3 ऑन है, ऐसा कोई पॉसिबल है? नो सर। नो, पॉसिबल ही नहीं ना। सपोज मान लो आपके पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसका I0 है बट I3 ऑन है, ऐसा पॉसिबल है कभी? No, sir. So that's why I have not taken 0 here. ठीक है, Okay. तो यहाँ पे देखो 0 1 दोनों पॉसिबल है। अब I3 को चेक करो, I3 कितना है? I3 कितना है? -1 प्लस हाफ -1 प्लस हाफ, इसका कितना है? -1/2 हाफ तो इसका कितना होना पड़ेगा? 0 0।
तो देखो I अगर 0 लोगे I3 0, ये पॉसिबल है, राइट। अगर I ऑन लोगे I3 0, ये भी पॉसिबल है। इस केस में पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे I3 कितना आ गया, 0 आ गया, उसलिए, है ना। Did you get what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप क्वांटम नंबर नोट डाउन करते जाओ, फिर पार्टिकल आप ही बताओगे, ठीक है। अब कौन सा बचा है? यस, पाई माइनस के लिए 0 है, प्रोटॉन के लिए कितना है, 0 है, K0 के लिए 1. +1 है, इसका कितना होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा। अब बैरियन में से आपका I कितना है, 0 और ऑन, I3 कितना है, 0 है, ठीक है। और क्या बचा है, S कितना है, -1। कौन सा पार्टिकल का हो सकता है बताओ, ये बताओ, ऐसा पार्टिकल बताओ बैरियन में से जिसका I 0 है, I3 0 है, S ऑन है, -1 है, किसका होता है वो, लैम्डा 0 का, ठीक है। दूसरा ऐसा पार्टिकल बताओ जिसका I ऑन है, I3 0 है, S -1 है, वो क्या है आपका, Sigma 0. तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। ऑप्शन में आपको बेसिकली एक गिवन रहेगा दोनों में से, ठीक है, कोई सा भी गिवन हो सकता है ना। जी क्लियर, क्या क्लियर है? Yes. Next you have, suppose this question is really important. Suppose pi minus is decaying to mu minus and anti-neutrino, and it is given that mass of pi particle or rest mass of pi particle is 140 mega electron volt per c square. Mass of mu particle is given as 105 mega electron volt per c square, ठीक है। मास इज गिवन, अब इसमें पूछा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूऑन स्पिन, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूऑन स्पिन अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, कितना प्रोबेबिलिटी है। सो यू हैव ए डीके पाई माइनस डिकेइंग टू म्यूऑन एंड एंटी न्यूट्रिनो and rest mass is given. The question is probability of muon spin along its momentum direction. Probability of muon spin along its momentum direction, कितना probability है बताओ। So I will proceed. So you know, for any decay linear momentum angular momentum दोनों कंजर्व होना पड़ेगा, right? For any decay linear momentum angular momentum कंजर्व होना पड़ेगा, right? So what I can say, pi minus is at rest, linear momentum क्या होगा, 0 हो जाएगा। And for muon let us assume it is p mu, and for anti-neutrino let us assume it is p nu bar. तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, what we can conclude कि जो म्यूऑन का लीनियर मोमेंटम होगा इट इज एंटी पैरेलल टू एंटी न्यूट्रिनो, राइट। अगेन वी नो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट यहाँ पे मैं क्या लूंगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम लूंगा, राइट। सो फॉर एनी अलाउड डीके लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वहां से क्या कंडीशन मिल रहा है, म्यूऑन का लीनियर मोमेंटम ऑपोजिट टू द एंटी न्यूट्रिनो। सेकेंड इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यहाँ पे कौन सा एंगुलर मोमेंटम चेक करूंगा मैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज ऑर्बिटल पार्ट गिवन नहीं है। इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, 0. इट विल बी 0। म्यूऑन का लेट अस assume it is s mu, and for anti neutrino let us assume it is s nu bar। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको, s mu that will be anti parallel to s nu bar, ठीक है। जरा याद करो जो एंटी न्यूट्रिनो का प्रॉपर्टी है, इनका मोमेंटम का जो डायरेक्शन है that is parallel to its spin, that's why anti-neutrino is right-handed, if you remember. For anti-neutrino its linear momentum and spin they are parallel, that's why they called right-handed particle. For neutrino linear momentum and spin are anti-parallel, that's why neutrino
इज बेसिकली लेफ्ट हैंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल होगा। तो सपोज मान लो, आप मानो कि पी न्यू बार का डायरेक्शन, लेट अस अज्यूम इट इज एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एस न्यू बार किधर हो जाएगा बताओ, इसका भी एक्स डायरेक्शन ही होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दोनों पैरेलल का मतलब क्या है, अगर न्यूट्रिनो का सॉरी एंटी पी न्यू बार, अगर पी न्यू बार एक्स डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली जो एस न्यू बार है वो भी आपका एक्स डायरेक्शन में है, तभी ये दोनों पैरेलल हो सकता है। Am I करेक्ट? Yes. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. तो यहाँ से देखो, नाउ पी म्यू का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी म्यू? -x. -6। एस म्यू का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? -x. तो देखो, both are actually parallel. P mu and S mu both are parallel. So probability of muon spin along the direction of its linear momentum will be how much? कितना हो जाएगा भाई? 1. Exactly, it will be 1 because both are parallel. Did you get what I'm saying? सर लास्ट स्टेटमेंट अभी जो बोला वो प्रोबेबिलिटी का समझ में आया, कुछ डायरेक्शन में बोल रहे हो वो समझ में नहीं आता है, कौन सी डायरेक्शन? For anti-neutrino, the direction of its linear momentum and its spin they are parallel. मतलब इसका जो linear momentum का direction होता है, ठीक है, और इनका जो spin का direction होता है, they are basically parallel. That's why anti-neutrino is called right-handed. न्यूट्रिनो के लिए ऑपोजिट हो जाता है। न्यूट्रिनो के लिए क्या होता है आपका, इसका linear momentum और इसका spin का direction ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिनो का प्रॉपर्टी है ये कि इनका जो लीनियर मोमेंटम एंड स्पिन देयर पैरेलल। अब मैंने अज्यूम किया, सपोज मान लो एंटी न्यूट्रिनो का लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, लेट अस अज्यूम, तो इसका स्पिन का डायरेक्शन भी किधर होना पड़ेगा, इट शुड बी इन एक्स डायरेक्शन, राइट? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस। ओके, नाउ इफ पी न्यू बार इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, पी म्यू बार की आपका पी म्यू का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इट शुड बी in minus x direction. Again, if s new bar is along x direction, s mu किधर हो जाएगा, minus x की तरफ हो जाएगा. Now you see, it is clearly noticeable that p mu and s mu, they are actually parallel. They are actually in the same direction. So probability of muon spin along the direction of its linear momentum will be how much? It will be 1 because both are parallel. ठीक है। अगर इस तरह की केस आ जाता है, सपोज मान लो यहाँ पे आपका म्यू1 का जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन प्लस आ गया और इसका स्पिन का डायरेक्शन माइनस आ गया, अब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता, 0 हो जाता। You get? But for this case both are parallel actually. For this case both are parallel, that's why this probability will be how much? +1. सर कल हमने वो रेस्ट मास से भी देखा था ना कि रेस्ट मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट, in that case the case possible, so why we can't use that here? So मतलब दिया नहीं है इसलिए ऐसा कुछ है क्या? रेस्ट मास से कैसे चेक करोगे आप मोमेंटम को? एम मोमेंटम, हाँ डीके पॉसिबल के लिए कुछ नहीं। ओके सर, सॉरी सर। डीके पॉसिबल, तो डीके इट इज पॉसिबल। इसका मास कितना गिवन है? 140 गिवन है। इसका कितना में? 105। ये मास लेस है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आई? रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप लोगों को समझ में आई ये वाला क्वेश्चन? नहीं? Sir, is it the intrinsic property of neutrino that the linear momentum and spin will be in parallel? आपने हेलिसिटी का लेक्चर देखे हो? No, sir. नहीं देखे हो? क्लास किए थे? Helicity. भूल गए? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलिसिटी के टाइम कि ऑल एंटी न्यूट्रिनो इन एग्जिस्ट इन नेचर, दे आर बेसिकली पैरेलल बिकॉज दे आर बेसिकली राइट हैंडेड। क्यों? क्योंकि वहां पे एंटी न्यूट्रिनो का जो प्रॉपर्टी है
उनका स्पिन और लिनियर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है पैरेलल होता है, और सारे जो न्यूट्रिनो नेचर में एग्जिस्ट है दे आर एक्चुअली एंटी पैरेलल, सॉरी दे आर बेसिकली लेफ्ट हैंडेड। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रिनो के लिए लिनियर मोमेंटम एंड स्पिन का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, Okay. हेलिसिटी के टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और उस टाइम मैंने आपको बोला भी था कि मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बेस पे। ठीक है, आप लोग याद रखना, तब भी आप भूल गए। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू दैट टाइम कि इसके बेस में एक क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। चलो कोई नहीं, अच्छे से रिवाइज करो इसको। ठीक है, ओके। सो ये इतना आप लोगों को सब कुछ समझ में आया जो प्रॉब्लम अभी तक हुआ है? कोई डाउट हो तो Yes. बोलो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, सपोज pi minus is decaying to mu minus plus anti-Newton. ठीक है, rest mass of pi meson is given, that is 140 mega electron volt per c square. Rest mass of mu lepton is given 105.7 mega electron volt per c square. ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करनी है? द एनर्जी ऑफ mu particle and the energy of anti-neutrino for this decay you have to calculate. ठीक है, ये आपका CSIR नेट में रेगुलर क्वेश्चन आता है, मतलब रेगुलर मतलब 4-5 बार आ चुका है इसके बेस पे। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? हाउ विल प्रोसीड? कैसे प्रोसीड करोगे बताओ? Sir, E equals to delta m c square. So as you know, for any decay energy should be conserved, right? And also momentum should be conserved. ठीक है, so let us proceed. तो इसके पास कितना एनर्जी है? Since it is decaying, it has only rest mass, that is m pi c square, and that should be equals to the total energy of mu lepton and plus total energy of anti-neutron. So energy should be conserved. It has only rest mass, that is m pi c square. That should be equals to sum of the total energy of mu lepton plus anti-neutrino. ठीक है, so this is your equation number 1. टोटल एनर्जी में हमने रेस्ट मास एनर्जी भी कंसीडर कर लिया। हाँ, इसमें दोनों पार्ट है आपका, इसमें आपका दोनों पार्ट है, रेस्ट मास प्लस इसका जो मोमेंटम वाला पार्ट है, काइनेटिक वाला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ सेकंड, linear momentum conservation. So since this particle is at rest, it will be 0. Linear momentum will be 0. And let us assume for mu lepton it is p mu, and for anti-neutrino it will be p nu bar. From this equation I'll get p mu should be anti-parallel to p nu bar. Okay. Now if you take magnitude, so what I can say that p mu mod कितना हो जाएगा आपका? p nu bar mod के बराबर हो जाएगा, and let us assume this mod equals to p. So they are basically opposite in direction, but if you take their magnitude, so their magnitude will be same, right? Huh? Right? So I have assumed this magnitude equals to some linear momentum, that is p. And let us, this is not equation number 1, this will be equation number 2. Is it clear to all? क्या यहाँ तक समझ में आई सबको? कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन एंड लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है ना? आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्या बात है भाई? Clear, sir. चलो, and you know total energy of mu particle, what I can write here? अब मैंने p mu को कितना माना? p के बराबर Sir. माना, Yes. p के बराबर माना, तो what I can write? p square c square plus m mu square c की पावर 4. ठीक है, let us take this is equation number 3. Similarly I can write e nu bar का square, that will be how much? Only p square c square. ठीक है ना?
बिकॉज पी न्यू बार मैंने कितना माना, पी के बराबर माना, एंड इट हैज रेस्ट मास कितना होता है न्यूट्रिनो का, 0. 0. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन रेस्ट मास पार्ट. लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से अगर सब्सट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको, ई म्यू स्क्वायर माइनस ई न्यू बार स्क्वायर, दैट शुड बी हाउ मच, क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, mu square C4. एम म्यू सी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट. एम म्यू स्क्वायर सी की पावर 4 को ए लिख सकते हैं हम, एम म्यू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. Yes, ठीक है ना, ओके. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर, ई म्यू, व्हाट आई कैन राइट, ई म्यू प्लस ई न्यू बार into e mu minus e nu bar, and that will be how much, m mu c square whole square. ठीक है, क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, जरा देखो ये किसके बराबर है, m pi c square. m by c square, है ना. so what I can write that e mu minus e nu bar, that will be how much, m mu c square whole square, एंड ये वाला पार्ट क्या था आपके पास, एम पाई सी स्क्वायर, ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, राइट. आर यू गेटिंग, यहाँ पे एक्चुअली क्या होना था आपका, एम पाई सी स्क्वायर, दिस एम पाई सी स्क्वायर आई कैन राइट हियर, राइट. इज इट क्लियर, Yes, sir. ओके. नाउ Yes. लेट अस अज्यूम दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 को 5 के साथ ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 5 है, तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ई न्यू बार कैंसिल हो जाएगा, राइट. and on the left hand side you will basically get 2 e mu. इसको अगर घुमा के लिखोगे तो फिर क्या लिख सकते हो आप, e mu प्लस e nu बार, दैट विल बी हाउ मच, राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा आपका, m पाई सी स्क्वायर चला जाएगा, राइट. मतलब इसको अगर घुमा के लिखोगे क्या मिलेगा आपको, e mu प्लस e nu बार, दैट विल बी हाउ मच, m पाई सी स्क्वायर. उसके बाद अगर ऐड करोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, e nu बार, so you will basically get 2 times e mu, that will be how much, that will be m pi c square plus m mu c square whole square divided by m pi c square. क्या क्लियर है, क्या क्लियर है आप लोगों को, बताओ कोई डाउट हो तो बताओ, is there any doubt here, No, sir, clear. yeah, right. now can you please tell me कितना आ जाएगा आपके पास, e mu कितना आ जाएगा, Half. हाँ, e mu will basically get m pi c square whole square plus m mu c square whole square divided by 2 m pi c square. देखो, Yes, sir. now you know this thing, m pi कितना होता है 140 mev per c square and it is multiplied by c square, तो divide by c square वाला जो पार्ट है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. Did you get, ये कितना होता है 140 mev per c square, so there is a division of c square and you have multiplied by c square also, so c square will be gone. So basically what you will get, you will basically get 140 ka square plus 105.7 ka square divided by 2 into 140. Okay, is it clear, अगर इसको कैलकुलेट करोगे ऑफ कोर्स यूनिट विल बी हॉट, यूनिट विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस पार्ट यू विल गेट 109.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 109 पॉइंट है यहाँ पे, है ना, कभी कभी दिखता नहीं है पॉइंट. ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को, Yes, sir. ओके ओके. तो म्यू पार्टिकल का एनर्जी आपको मिल गया, ये आपका टोटल एनर्जी है उसका,
अब जरा बताओ इसका कितना हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो का टोटल एनर्जी? as you know E mu equals to how much? इक्वेशन 1 से हम E mu सब्स्टिट्यूट plus E nu bar, yes. That is how much? That is m pi c square. And that is nothing but m pi c square कितना होता है? On 40 mega electron volt. Now we have obtained E mu. So E nu bar will be how much? E mu कितना है आपके पास? 109.9. So basically we will get 140 minus 109.9. 109.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 30.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज क्लियर? बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? नहीं? अच्छा, आप लोगों का क्वांटम मैकेनिक्स क्लास हो गया? स्कैटरिंग No, sir. नहीं हुआ? अरे मैं तो अभी एक क्वेश्चन करने वाला हूँ जो स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड है। हाँ चलो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी डेरिवेशन तो मैं नहीं करूँगा, वो अतुल सर करवाएंगे, क्योंकि स्कैटरिंग बेसिकली मेरा पार्ट नहीं, क्वांटम का पार्ट है, ठीक है ना। तो जहाँ पे जितना जरूरत है मैं बता दूंगा, बाकी डेरिवेशन कहाँ से आया फॉर्मूला वो अतुल सर बताएंगे स्कैटरिंग के टाइम, ठीक है। क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों का? अगर क्लियर है तो फिर मैं इरेज करके नया क्वेश्चन करूंगा। इज क्लियर टू ऑल? बताओ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली जो आपका नेट का एग्जाम हुआ था वहां पे आया था, ठीक है। सो इसमें क्या गिवन था? सो देयर इज ए स्कैटरिंग, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, हार्ड स्फीयर इलास्टिक स्कैटरिंग, and that scattering is given that pi minus is in pi minus particle is interacting with proton and it is giving you pi minus p. So this interaction they have given you hard sphere elastic scattering, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है? हाँ ये प्लस नहीं, हाँ इन बिटवीन प्लस नहीं है सर, मतलब पाई माइनस प्लस चाहिए ना। नहीं, देखो ये रिएक्शन को इस हिसाब से भी लिखते हैं, कंफ्यूजन मत नहीं होना, एग्जैक्टली एग्जाम में यही आया था। इसका मतलब है ये प्लस है, ठीक है, समझ रहे हो? यू गेट? पाई माइनस इज इंटरेक्टिंग विथ प्रोटॉन। तो अगर इस तरह की अगर आपको दे दिया एग्जाम में, इस तरह की आया था आपको, तो इसका मतलब क्या है? पाई माइनस इज इंटरेक्टिंग विथ प्रोटॉन। तो इसको इस हिसाब से भी लिखते हैं बुक में। अब डिपेंड करते हैं कौन सा बुक कौन सा सिंबल फॉलो करता है, ठीक है। क्लियर सर। So you have a pi minus p, this kind of scattering they have given, and they ask you to calculate the total scattering cross section sigma. Sigma is what here? Total scattering cross section for this interaction will be how much? And आपको given है कि ratio of mass of pi particle to that of proton, that is given, that is 1/6. And also they have given the mass of proton also. Mass of proton they have given you 938 mega electron volt per c square. Okay, so this kind of scattering given you and they ask you to calculate total scattering cross section. Okay, now ठीक है। So basically scattering हम कहाँ पढ़ते हैं बताओ आप लोग? Basically the scattering process we used to learn from classical mechanics as well as quantum mechanics, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स का भी यूज करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम डिराइव करते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज करेंगे, है ना, जहाँ पे बड़ा बड़ा पार्टिकल है, ठीक है ना। अब जब सबएटॉमिक पार्टिकल आ जाएगा वो आपका क्वांटम पार्टिकल है, वहां पे हम क्वांटम पार्टिकल का जो ये है फॉर्मूला है वहां पे यूज करेंगे।
क्वांटम पार्टिकल का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो दो चीज है आपका, एक आपका क्लासिकल ऑब्जेक्ट, क्लासिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो क्लासिकल का डेरिवेशन है वो यूज करेंगे, और जहाँ पे क्वांटम पार्टिकल है क्वांटम का जो डेरिवेशन है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन दो एनर्जी में आता है, एक आपका हाई एनर्जी रिजिम में आता है और एक लो एनर्जी रिजिम में आता है। जो हाई एनर्जी रिजिम में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलता है, क्वांटम मैकेनिकली कितना मिलता है, क्वांटम मैकेनिकली टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन हाई एनर्जी रिजिम दैट इज 2 पाई आर इफेक्टिव का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा रिजिम यूज, कौन सा पिक्चर यूज करना पड़ेगा, क्लासिकल और क्वांटम, कौन सा क्वांटम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस पार्टिकल आर क्वांटम पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरी बात, क्या मेरे को हाई एनर्जी रिजिम में कैलकुलेट करना पड़ेगा या लो एनर्जी रिजिम में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन एनर्जी रिजिम। हाई एनर्जी के लिए 2 पाई आर इफेक्टिव 2 पाई आर स्क्वायर आता है, लो एनर्जी के लिए आई थिंक 4 पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है ना, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा आपको, हाई एनर्जी रिजिम में यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस पार्टिकल्स आर हाई एनर्जेटिक पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या होता है आपका, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज क्वांटम रूल विथ हाई एनर्जी रिजिम, and according to quantum mechanics the total scattering cross section in high energy regime that is nothing but 2 pi r effective का square. Now what is r effective here, r effective क्या है, r effective is the effective radius of these two particles. So it is like that, you have a proton, its radius is rp, and you have a pi particle, its radius is r pi. तो आर इफेक्टिव जो होता है बेसिकली इनका सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो होता है आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, आर इफेक्टिव विल बी नथिंग बट रेडियस ऑफ प्रोटॉन प्लस रेडियस ऑफ पायन। ठीक है, सो इफ यू able to calculate the radius of proton and radius of pion then your job will be done. ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे आर प्रोटॉन का प्रोटॉन का रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, क्या क्वेश्चन आपको क्लियर है। सर एक बार उससे भी ये बताइए, हम हाई एनर्जी रीजन क्यों कंसीडर कर रहे हैं। दिस पार्टिकल, इसका एनर्जी बताओ आप कितना होता है, प्रोटॉन का एनर्जी बताओ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ पर स्क्वायर। तो दिस एनर्जी इज वेरी हाई, है ना। अच्छा आप ऐसे बोलते हो ना, आप हाई एनर्जी पढ़ते हो, आपका हाई एनर्जी स्पेशलाइजेशन है कि नहीं, आप लोगों ने सुने हुए टर्म पार्टिकल फिजिक्स को बेसिकली हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं, आपको पता है, आपको पता है, किसी को पता है, पार्टिकल फिजिक्स को बेसिकली नहीं सर। पार्टिकल फिजिक्स को हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल है दे आर बेसिकली हाई एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, इसका एनर्जी देख सकते हो, प्रोटॉन का कितना होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर। So these particle are actually high energy particle. That's why you have to use scattering cross section at high energy region. ठीक है, you have more question? नो सर। Okay, now how will calculate the radius of proton? Tell me. कैसे calculate करोगे? So you know this formula from nuclear physics. R equals to nothing but R naught a की power 1/3, right? And when you are using proton, proton is nothing but on H1, right? Proton is nothing but on H1. So इसका मास नंबर कितना है प्रोटॉन का, बेसिकली 1 है। So radius of proton will be how much? Radius of proton will be how much? It will be R naught into 1 की power 1/3. So it will be basically R naught, and R naught is basically of the order of femtometer. On femtometer के अराउंड होता है। So radius of proton will be approximately on femtometer. Okay, क्या ये क्लियर है? So you have to calculate R effective. You have Sir, obtained the what is A here? A is the mass number
फॉर एनी सपोज यू हैव ए न्यूक्लियस एंड इट्स सिंबल इज, कैसे लिखते हैं न्यूक्लियस का सिंबल, एक्स जेड ए, एक्स जेड ए, इसका जो रेडियस होता है आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ पे जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ए को बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटॉन इज नथिंग बट ऑन एच ऑन, तो इसका मास नंबर प्रोटॉन का कितना है, ऑन होता है। तो आर पी इक्वल्स टू आर नॉट ऑन की पावर 1/3, दैट विल बी आर नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट इज अराउंड on femtometer. So what I can say, the radius of proton will be around on femtometer. Now how will calculate the radius of pi particle? If you able to calculate the radius of pi particle, then your job will be done. So you know one formula, you know that volume, since these particles are spherical in nature, so what I can write, the volume of pi meson, that will be 4/3 pi r pi cube, that will be nothing but mass of pi particle divided by its density. So you have equation number 1, and same I can write for proton also, 4/3 pi rp cube, sorry rp cube, that will be how much, mass of proton divided by density, and that will be 2. Now if we divide equation number 1 by 2, if we divide equation number 1 by 2, then what you will get basically, r pi by rp the cube, that should be equals to mass of pi divided by mass of proton, and that is given as 1/6. So it means what I can say, the radius of pi will be how much, radius of proton into 1/6 की power 1/3, 1/6 की power 1/3, ठीक है। It means it will be, radius of proton is 1 femtometer, so it will be 1/6 की power 1/3 femtometer. Okay. Sir, here the density in both the cases will be same. Yeah, you have to take same So- density because these particles are subatomic, so their density will be nearly same. Okay, density will be nearly same because these particles are so small. It will not, oh, that we don't know actually, but you have to take care of density same, because in this question they didn't ask you exact scattering cross section. They ask you to calculate approximate scattering cross section. Since they didn't talk about the density for this question, so you have to take density is same because these are subatomic particles, so that density will be nearly same. Okay. Sir. So now you have obtained the value of rp as well as r pi. Now you can easily calculate the scattering cross section. That will be how much? So sigma will be how much now? 2 pi r effective. R effective में क्या आ जाएगा आपका, r pi, इसका रेडियस कितना था, on, इसका कितना हो जाएगा, 6 की पावर 1/3, राइट, 6 की पावर 1/3 का स्क्वायर. Now I am converting it into meter, then how much I will get, आपके पास एक 10 की पावर -30 का मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा, because this you will get in the unit of femtometer square. अब एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है, तो एक फेम्टोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10 की पावर -30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल रहा था, कौन सा यूनिट में मिल रहा था, फेम्टोमीटर स्क्वायर, दैट आई हैव कन्वर्टेड टू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली आप, एक बाण किसके बराबर होता है, किसी को भाई आइडिया है, एक बाण किसके बराबर होता है, ऑन बाण इज हाउ मच बेसिकली, 10⁻⁻28. तो 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो वैल्यू है, अगर बार में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये इसका वैल्यू आएगा 0.15 बार में आएगा, ठीक है। यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 0.15 बार, ठीक है। बट एग्जाम में आपका क्लोजेस्ट पूछा था, तो 0.15 के जो क्लोजेस्ट था वो 0.1 था, तो आपका क्या क्या ऑप्शन में था, दो तो ऑप्शन मिली बार्न में था, मिली बार्न में तो है नहीं, ये बार्न में है, और एक आपका 10 बार्न था, वो भी नहीं पॉसिबल है, एक आपका 0.1 बार्न था।
आपको पूछा गया था इसका जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इसका क्लोजेस्ट कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो इसका क्लोजेस्ट कौन सा हो सकता है, 0.1 हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एग्जाम में आपका 4 ऑप्शन था, 2 आपका मिली बार्ड में था, मिली बार्ड में तो पॉसिबल नहीं है। एक आपका 10 बार्ड था, वो भी पॉसिबल नहीं है। एक आपका पॉइंट ऑन बार्ड था, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन था कि इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्लोजेस्ट कौन सा पॉसिबल हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? पॉइंट ऑन वाला ही पॉसिबल है नहीं, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस वैल्यू दैट इज 0.15, तो उसका क्लोजेस्ट कौन सा है, पॉइंट ऑन ही है। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव क्वेश्चन? क्या क्लियर है आप लोगों का, कोई डाउट है यहाँ पे? Yes, sir. ओके ओके सर, हाँ यस। उसमें मेरा इंटरनेट चला गया था। सिर्फ सर इतना बताइए कि आर पाई के बाद 1/6 1 फेमटोमीटर रहने के बाद ये हमने क्या स्टेप किए अपने, मतलब सब्स्टिट्यूट किए क्या वैल्यू, वो जरा हाँ से ओके ये जो नेक्स्ट, हाँ वो स्टेप सिर्फ एक बताइए क्या चलिए किया, ठीक है। मेरा क्या रेंज। फॉर्मूला थे आपके पास? 2 पाई आर इफेक्टिव का स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, एंड व्हाट इज आर इफेक्टिव? आर इफेक्टिव इज नथिंग बट रेडियस ऑफ प्रोटॉन, radius of proton plus radius of what? Radius of pi particle. Radius of proton is how much? 1 femtometer. Pion का कितना होता है? 1/6⁻⁻³ femtometer. So this is your R effective. Now you have to substitute this R effective here. Okay. क्लियर क्लियर, थैंक यू सर। Okay. किसी का कोई और डाउट है यहाँ पे? बताओ। आप लोग होमवर्क ठीक से नहीं कर रहे हो, प्लीज डू दिस होमवर्क, है ना? ठीक है। So can we take 5 minute break? 5 minutes break. Can we take 5 minutes break? यस सर।